Sure, I'm available with the next chapter. Okay, the circle, the chapter name is chapter number is a 10. Okay, so we are here with doing the study chapter 10 from the NCERT. ओके चैप्टर नेम है सर्कल। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, सम बेसिक डिफिनीशंस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन से डिफिनीशन दे आर बिलोंगिंग्स फ्रॉम द चैप्टर, ओके, द सर्कल। ओके, सो जैसे पहला डिफिनीशन, व्हाट इज द रेडियस? व्हाट इज द रेडियस? सो रेडियस क्या होता है, पहले ध्यान रखो। व्हाट इज द सर्कल? सर्कल क्या है? फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज अ इक्वल डिस्टेंस अराउंड द सराउंडिंग टू द पॉइंट। इस पॉइंट, किसी भी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस अगर इसके सराउंडिंग में हम फॉर्म ज्वाइन करते हैं, सो वी आर गेटिंग द सर्कल। अगर हम इस इक्वल डिस्टेंस को, ये जो डॉटेड लाइन है, इसको ज्वाइन करते हैं तो क्या बनाएंगे? वी आर गेटिंग अ सर्कल। हम लोग इसको सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका डिफिनीशन ऑफ द सर्कल। नाउ व्हाट इज द रेडियस? सो फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, देखो इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेंटर एंड दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस, और द ओ पॉइंट is the dotted point. I'm making this dotted point should be the highlight. So this dotted point is called the center of the circle. So from the center of the circle to the circumference of the circle, this length is called the radius. And second, it is a diameter. What is the diameter? The twice of the radius is called the diameter. The twice of the radius is called the diameter. Now we are coming to the arc. So what is the arc? What is the arc? So the from the center, ठीक है, from the center to the any, या तो हम कह सकते हैं ना, we are taking the small distance of the circumference. ठीक है, किसी भी circumference का अगर हम कोई भी छोटा सा पार्ट ले लें, so this part AB, this part is called the arc. So there is two types of the arc. Okay, again there is two types of the arc. First is called the minor and second is called the major. ठीक है, first is minor, the smaller length of the arc is called the minor, the larger length of the arc is called the major arc. ठीक है, next we are coming to the internal and external point. So that is called I. Okay, what is the mean of the internal and what is the mean of the external? So ध्यान रखो, if there is a circle, so circle is a plane figure. सर्कल क्या है? एक प्लेन फिगर। देखो, वी आर फॉर्मिंग द सर्कल, और क्या है? एक प्लेन है ना, वी आर फॉर्मिंग द सर्कल ऑफ द प्लेन। सो ये क्या है? एक प्लेन है। सो इस प्लेन पे हम क्या करें? सर्कल को फॉर्म करें। तो सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सो आउटसाइड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, सपोज दैट द ई पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, सो इस पॉइंट को बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, this is called the exterior point and the O is called the interior point. अगर कोई पॉइंट सर्कल पे लाई करता है, सपोज दैट C lies on the circle, so इस पॉइंट को बोलेंगे, ओके, इस पॉइंट को बोलेंगे द पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। ठीक है, so don't be confused about the interior point. The inside of the circle, all the point from the inside of the circle is called the interior. Outside of the circle is called the exterior, and on the circle, that is the lies on the circumference. ठीक है, ये हो गए आपके some basic definition. And now we are coming to the chord. What is the meaning of the chord? So इस पूरे लेक्चर में हम लोग पूरा बेसिक डिफिनीशन ही कवर करने वाले हैं. So now we are coming to the chords. So what is the chord? ठीक है, if we are joining the two end point of the circle,
we are joining the two end point of the circle. Suppose that we are joining the point A and point B. ठीक है? So when we are joining the two end point of the circle, we can say it is a chord. ये क्या हो गया? chord हो गया. अगर हम देखो chord A भी तो है, it is a going from the center. So A भी क्या है? chord है. Okay, A भी क्या है आपका? chord है. And this chord is called the diameter. So you can say the diameter is also the chord. Diameter is also the chord, and the maximum length of the chord is equal to diameter. So you have to write it here. Maximum length of chord equal to diameter. ठीक है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू डायमीटर होता है. ध्यान रखना इस चीज का. नाउ ओके, सो अब हम लोग आते हैं. कॉर्ड कुछ भी हो सकता है. एनी टू पॉइंट फ्रॉम द एनीवेयर. ओके, ऑल दे आर द कॉर्ड हियर. ऑल दे आर द कॉर्ड हियर. मे बी द स्मॉलर लेंथ ऑल्सो. सो जितने भी पॉइंट आप जितने भी लाइन देख रहे हो, ये सब के सब आपस में कॉर्ड हैं. नाउ वी आर कमिंग द टैंजेंट. अब टैंजेंट होता क्या है? सो इज द हेडिंग इज टैंजेंट. ध्यान रखो, ऑन द सर्कल इफ द लाइन passes थ्रू द सिंगल पॉइंट ऑन द सर्कल. देखो सर्कल क्या है? इट मेड बाय द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट. तो टेंजेंट क्या है? किसी भी सर्कल के किसी एक सिंगल पॉइंट से होकर के जाए, सो इसको बोलते हैं टेंजेंट. द लाइन ए बी इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द सर्कल. और टेंजेंट ये हमेशा क्या करता है? फ्रॉम द सेंटर इट फॉर्म द राइट एंगल. टेंजेंट ऑलवेज फॉर्म द सेंटर टू द राइट एंगल. ठीक है? नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड. सो सेकेंड एंड कॉर्ड में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है. ज्यादातर बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ द सेकेंड, व्हाट इज द मीन ऑफ द कॉर्ड. तो ध्यान रखो, सेकेंड क्या है? हम लोगों ने कॉर्ड की डिफिनेशन में पढ़ा था, व्हेन वी आर ज्वाइनिंग द टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड द कॉर्ड. ठीक है? अब क्या करें? अगर यहीं पे सेम डिफिनेशन में क्या कहते हैं हम? If the line intersect the two point to the circle is called the second. देखो ये हो गया second and that is called the chord. So chord always should be the two end point of the circle. Second will intersect, the line will intersect the two point of the circle is called the second. Okay, I hope everyone getting the clear. Now we are coming to the segment and sector. Segment and sector, it is a topic of the class 10th, but basic आपको पता होना चाहिए कि segment क्या है and what is the sector. Okay, if you want the definition, you can go to the below link. There is available of the PDF file. You have to download and you can write the definition from there. ठीक है? So यहाँ पे हम explain कर रहे हैं. definition चाहिए तो below link में जाओ, वहाँ पे अवेलेबल है. जस्ट हैव टू क्लिक एंड डाउनलोड इट. सेगमेंट क्या है? देखो, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड और कॉर्ड. सेकेंड, ठीक है? वी आर ओके, आई एम मेकिंग द कॉर्ड. सेकेंड भी रहेगा, कॉर्ड भी रहेगा, नथिंग टू वरी अबाउट दैट. ठीक है? सो द एरिया डिवाइडेड बाय द सेकेंड और द कॉर्ड टू फॉर्म द सेगमेंट. देखो ये क्या है? It is also the segment and this is also the segment. देखो smaller area क्या हो जाएगा? The minor segment and ये क्या हो जाएगा? Major segment. So segment, it is divided by the chord or second. Okay, the circle divide by the chord or second to form the segment. ध्यान रखना, कंफ्यूजन यहां पे भी होता है कि chord किसको बोलते हैं, segment किसको बोलते हैं. तो chord is a line. Okay, ये जो line है, the line AB is called the chord and the area bounded by the line to the arc, line to the arc. देखो line to the arc is called the segment. इस एरिया को बोलते हैं segment. ध्यान रखो, this is area is called the segment. एरिया क्या है? segment. ठीक है? So area and chord, don't be confused about that again. Okay, now we are coming to the sector. अब सेक्टर है क्या?
ठीक है, सेक्टर पे बहुत सारे एरिया का प्रॉब्लम आता है इन क्लास 9 क्लास 10 सर्कल में. सो व्हाट इज द मीन ऑफ द सेक्टर? If we are joining the two radii is the bounded by the two radii to the arc, bounded by the two radii to the arc to form the sector. ये क्या है आपका? सेक्टर है. ओके, सो OAB is a sector. Again, it's area. ध्यान रखो, this is a area. So area bounded by the EOB is called the sector, and area bounded by the AXB is called the major sector. So again, sector, again segment is also the minor and major, and the sector also will be the minor and major. Minor always will be the smaller in the length or in the area, and the major it should be the larger length or larger area. ध्यान रखो. So यहाँ पे देखो, smaller area is called the minor, this is called the minor, and this is called the major. Minor segment, sector, minor sector, and this is called the major sector. Okay, okay, there is a T, I forgot. ठीक है, this has become the definition of the segment and sector, and now we are coming to the inscribed and circumscribed of the circle. ठीक है, inscribed and circumscribed of the circle. अगेन यहां पे अगेन इन दोनों वर्ड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं. व्हाट इज द मीन ऑफ द inscribed एंड circumscribed of circle. ठीक है, ओके. सो inscribed and circumscribed of the circle क्या होते हैं? पहले ध्यान रखो, inscribed मतलब inside and circumscribed मतलब outside. Okay, from the circumference. So inscribed, suppose that there is a one of the quadrilateral is here. I don't know which type of quadrilateral, maybe the square, rectangle, maybe the anywhere, anyone. Okay, so when the circle passes through the from the all the side of the circle. Okay, all the side of the rectangles or the maybe the triangles also it can be there. ट्रायंगल भी हो सकता है. सो क्या करें, इन तीनों की साइड से होकर के जो जाए द इनसाइड ऑफ द प्लेन फिगर, इनसाइड ऑफ द पॉलीगॉन टू फॉर्म द सर्कल इज कॉल्ड द इंस्क्राइब्ड सर्कल. इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल. ध्यान रखो, अगेन this is a tangent, so AB is called the tangent and the BC is called the tangent and the CD also called the tangent. There also PQR, again PQ is a tangent to the circle, QR again tangent to the circle. So why they are the circle tangent? क्योंकि ये सब की सब लाइन क्या करें, सर्कल के किसी एक पॉइंट को ही टच करेंगे, तो इसलिए क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग द tangent. ध्यान रखो, द ए बी आर द टैंजेंट. और एक चीज और मैं आपको यहां पे बता दूं, ठीक है, कि जो लेंथ ऑफ सपोज दैट इज दैट पी एंड इट्स अ क्यू आर एंड एस. सो ए पी इज इक्वल टू ए एस, इट्स ऑलवेज विल बी द इक्वल. द पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ इक्वल टू दिस. ए इसके इक्वल है, एंड नाउ दिस फोर्थ इज इक्वल टू दिस फोर्थ. सो ये सब आपस में क्या होते हैं, दे आर इक्वल. ठीक है, क्योंकि टैंजेंट ओके फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सर्कल. ठीक है, ध्यान रखो, एक थ्योरम आप क्लास 10th में पढ़ोगे. ऑन द सर्कल इफ यू आर प्लॉटिंग द टू टैंजेंट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, द लेंथ ऑफ द टैंजेंट आर इक्वल. दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. तो देखिए ये क्या है, O is outside of the point, AP and AS we are plotting the tangent, so this two R will be the equal. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, DS equal to DR. Similarly यहाँ पे हो जाएगा if that अगर LM1 है, so PL equal to PN and LQ equal to MQ. So you have to write PL equal to PN, LQ is equal to MQ. Similarly for the RN equal to RM.
सो यहाँ पे मैंने तीनों साइड के लिए लिख लिया, आई हैव रिटन द 2, आप बाकी के 2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे शुड बी इक्वल। ठीक है, अब हम आते हैं, अब एंगल के बारे में बात करते हैं। सो ये हो गया आपका इंस्क्राइब्ड। नाउ वी आर गोइंग टू द सर्कमस्क्राइब्ड ऑफ द सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड क्या होते हैं? कोई भी प्लेन फिगर में, मे बी द एनी पॉलीगॉन, इफ द सर्कल गोइंग टू द ऑल द पासेस टू द ऑल द वर्टेक्स ऑफ द plane figure or the polygon to form the circumscribed of the circle। ठीक है, ये क्या करता है? circumscribed of the circle, सर्कल की ये जो सर्कल बोलते हैं इसको circumscribed of the circle कहते हैं, जो क्या होता है? आउटसाइड बनता है, नॉट इनसाइड। और कहां से पास करता है? द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, जस्ट लाइक इफ यू वांट टू सी फॉर द ट्रायंगल्स, सो इट कैन बी पॉसिबल फॉर द ट्रायंगल्स ऑल्सो। सो ये हो जाएगा आपका, ओके, व्हेन यू आर टेकिंग द प्रॉपर लेंथ, सो इट हैज कम इन द ओवल शेप। ठीक है, ये आपका ओवल शेप में हो गया। नाउ व्हेन वी आर टेकिंग द प्रॉपर लेंथ ऑफ दिस, सो ये आपका बन जाएगा प्रॉपर। ठीक है, ओके, सो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द सर्कमस्क्राइब्ड ऑफ द सर्कल। ये है आपके सर्कम ऑफ सर्कल। ठीक है, ये तो हो गए बेसिक डिफिनीशन, सम ऑफ द बेसिक डिफिनीशन। नाउ वी आर गोइंग टू द एंगल्स, जो आपके क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम मैक्सिमम टाइम्स हम लोग उसका नेम लेंगे, बट डोंट बी कंफ्यूज कि किसको क्या एंगल बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ यहां पे है आपका इंस्क्राइब्ड एंगल एंड सेंटर एंगल। टू एंगल यू हैव टू लर्न हियर, इंस्क्राइब्ड एंगल एंड सेंटर एंगल। अब इंस्क्राइब्ड एंगल किसको बोलते हैं और सेंटर एंगल किसको बोलते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो इंस्क्राइब्ड एंगल, व्हाट, पहले सेंटर एंगल देखते हैं। सपोज दैट दिस इज अ सर्कल, ये क्या है? एक सर्कल है, एंड इट इज अ सेंटर ओ। ठीक है, सो इट इज बाउंडेड बाय द रेडियस, टू फॉर्म द एंगल इज कॉल्ड द सेंटर एंगल। इस एंगल को बोलते हैं सेंटर एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड सेंटर एंगल। ठीक है, ये एंगल हो गया आपका सेंटर एंगल। नाउ अगर हम क्या करें, फ्रॉम दिस, ओके, इफ एनी एंगल्स फॉर्म बाय द, ओके, इफ एनी एंगल फॉर्म बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बाय द टू, बाउंडेड बाय द टू कॉर्ड, ये देखो कार्ड है ना, दैट ए बी एंड सी, ए बी एंड बी सी इज अ टू कॉर्ड बाउंडेड बाय द टू कॉर्ड फॉर्म द इंस्क्राइब्ड एंगल। इसको बोलते हैं क्या? इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, सो ध्यान रखिए, सेंटर एंगल, ओके, सेंटर एंगल फॉर्म बाय द सेंटर एंड इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कहीं पे भी बनाए, ठीक है, कहीं पे भी बनाएगा वो आपका इंस्क्राइब्ड एंगल ही कहलाएगा। सपोज दैट इट हैज फॉर्मिंग द, यहां पे भी बना रहा है, सो ये भी क्या होगा? इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। ठीक है, सो ये सब के सब आपस में क्या है? दे आर द इंस्क्राइब्ड एंगल। ये सब के सब आपस में क्या? इंस्क्राइब्ड एंगल, एंड द फॉर्म बाय द सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर एंगल। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया क्या रेडियस क्या होते हैं, डायमीटर क्या होता है, आर्क क्या है। द आर्क के टू टाइप्स थे, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। कॉर्ड देखा, ओके, कॉर्ड को कैसे फॉर्म करते हैं देखा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड हम लोगों ने देखा, सेकेंड देख लिया, ठीक है, टैंजेंट भी देख लिया, एंड वी हैव सीन द सेगमेंट अगेन इट्स अ टू, माइनर एंड मेजर कॉर्ड, ओके, द सेक्टर अगेन वी हैड सीन द माइनर एंड मेजर। और उसके साथ में हम लोगों ने देख लिया द पॉइंट लाइज ऑन द इंटरनल, ओके, इंटरनल ऑफ द सर्कल और एक्सटर्नल ऑफ द सर्कल, इनसाइड ऑफ द सर्कल और आउटसाइड ऑफ द सर्कल। उसके बाद हम लोग देखिए सर्कमस्क्राइब्ड एंड इंस्क्राइब्ड ऑफ द सर्कल एंड इंस्क्राइब्ड एंगल एंड सेंटर एंगल। सो इतने टोटल बेसिक टर्म्स से आपके सर्कल के, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको ये क्लियर रहेगा तो आगे बेसिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, यू आर नॉट गोइंग टू फेस द एनी प्रॉब्लम्स व्हाइल द डिफिनीशन। ठीक है, इफ यू वांट टू PDF of this
lectures, you have to go to the below of the link. You can download it from there and do it. Okay, so if you like this video, please do it, comment, like and subscribe. Don't forget to share to other. Okay, when you are serving the knowledge, knowledge will never end. ठीक है, ध्यान रखो. Okay, bye bye and see you.